So next is properties of bases. So first of all, as we talk about taste and feel, the bases are bitter in taste. bases ऐसे solutions रहेंगे, they are bitter in taste as compared with acid. अगर बात करी जाए, acids क्या थे हमारे, sour in taste. And we can see one another thing, इसको हम feel करके भी पता लगा सकते हैं, this is basic solution or acidic. नॉट एसिडिक को हम नहीं टच करेंगे डायरेक्टली बिकॉज दे कैन बी करोसिव. फाइन. तो यहाँ पे वी कैन से दैट इन केस ऑफ बेसिस आर बिटर इन द टेस्ट एंड वी कैन फील स्लिपरी. सोपी टच आता है उनको टच करके, कैसा स्लिपरी टच आता है. दैट्स व्हाई दे वी कैन कम टू नो कि बेसिस क्या है. जैसे कि सोप्स की बात करते हैं तो सोप्स बेसिक होते हैं नेचर में बिकॉज दे आर स्लिपरी इन नेचर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी करोसिव नेचर. Bases are also having corrosive nature, but not all the bases. Some of the bases are corrosive in nature. For example, caustic soda and caustic potash. These are the bases which are corrosive in nature. क्या करेंगे corrosive चीजें, क्या करेंगी, strong burning action करती हैं on skin and then they can cause blister. मतलब किस चीज को जला देना, किसको corrode करना, deteriorate कर देना. So that is also in the case of caustic soda and caustic potash, which are bases and showing corrosive nature. Next is properties of bases में again action of indicators. So let's see, we have already done this in detail along with the indicators. So we have started this chapter, but still we need to see here again कि क्या हो रहा है indication of bases when we are testing them with the indicators. So let's see the indicators and color change. So first of all, first indicator is red litmus solution. Red litmus solution, when we are going to test with red litmus a given solution and red litmus is turns into blue. In case of acids, what happens when blue changes to red? Here is opposite. Red is changes to blue. If the red litmus is changes to blue, then the particular solution is basic. Next indicator is methyl orange. Methyl orange is orangish in color, and when we are going to test it for basic solution, it is changes to yellow color. Orange to yellow color का appearance होगा with the help of indicator. Next is phenolphthalein. Phenolphthalein is an indicator जब acidic और neutral medium में क्या रहता था, colorless. Hope you guys remember this thing कि we have done with the case of acids also this thing. So in that case we have done that कि phenolphthalein remain colorless when the given solution is acidic or neutral in nature. But what is happening here in the case of base, phenolphthalein is an indicator which is giving us pink color whether the given solution is base. So these are the effects of indicators on the bases. Next is another properties of base में conduction of electricity. So hopefully you guys remember we have done with the acids कि what is happening when we are passing electricity to the given solution which is acidic. That is the conductor of the electricity. वो solution क्या करेगा, electricity को conduct करता है. Same is happening with the bases like acids. The solutions of bases in water also conduct electricity. जो basic solutions है because they are also producing ions ना, तो production of ions is responsible for the conduction of the electricity. So like acids, bases are also going to go with the conduction of the electricity. Next is reaction with acids. When bases are react with acids, hopefully you guys are remember, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें. We have done this thing just now. कुछ टाइम पहले हमने acids के साथ भी base का reaction कराया था. Now reaction of base with acids we can see. तो product तो अपना same होने वाला है, reaction will be same. कौन सा रिएक्शन है, एल्कली और बेसिस जब रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ विद द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हमें क्या मिलेगा, जो भी सॉल्ट मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सॉल्ट रहेगा दैट इज न्यूट्रल इन नेचर. वो सॉल्ट कैसा रहने वाला है, न्यूट्रल. एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. Acid and base both combine together, they'll giving a product of salt and water, and salt will be neutral in nature, not acidic nor basic. So that's why reaction is called as neutralization reaction. Next is, let's proceed further with the properties also. You can see the reaction here, reaction with acids. वही जो रिएक्शन हम कर चुके हैं पहले, देखो NaOH ले रखा है यहाँ पे. NaOH is what? Sodium hydroxide, which is a strong base, reacting with HCl. HCl is a strong
acid. When these both acid and base reacting each other, they are neutralizing the action of each other. Acid क्या करने वाला है, base का action क्या करेगा, neutralize करेगा, उसको क्या करेगा, diminize करेगा, नीचा करेगा, और base क्या करेगा, that is also strong. जब दो strong चीजों में fight होगा तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बराबर की टक्कर देने वाले. It means that they both are giving the equal टक्कर दोनों को देंगे और क्या करेंगे, अपने पास दोनों के इफेक्ट में ऐसा नहीं होने वाला कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा, नाइदर एसिड नॉर बेस. और जो सॉल्ट बनेगा अपना, दैट विल बी न्यूट्रल इन नेचर, जो कि अपना NaCl है. एंड वी आर वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग कि NaCl इज द सॉल्ट विच वी आर यूजिंग इन आवर फूड कुकिंग में. जो हम भी खाना बनाते हैं, हम जो सॉल्ट यूज करते हैं ईटिंग के लिए, दैट इज द NaCl टेबल सॉल्ट अपना. तो दैट इज न्यूट्रल वन. सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन. नेक्स्ट इज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट रिएक्शन. नेक्स्ट इज alkalis liberate ammonia from ammonium सॉल्ट. अमोनियम के सॉल्ट है, ठीक है. अभी हमने क्या करा, सॉल्ट से हम अमोनिया गैस प्रोड्यूस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एल्कलीस बेसिस. तो कैसे प्रोडक्शन होगा, यू कैन सी इन द रिएक्शन हियर. एल्कलीस को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे विद अमोनियम सॉल्ट, जिससे क्या लिबरेट होगा, अमोनिया गैस. यू कैन सी इन द रिएक्शन NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, which is a salt. अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड जब भी आएगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. क्लोराइड्स क्या होते हैं, अपने इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है. तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है. जब इस सॉल्ट को रिएक्ट कराया जाएगा NaOH के साथ, NaOH इज अ बेस, एल्कली है अपने पास. जब ये रिएक्ट करेगी, वी कैन सी क्या होगा, आयन एक्सचेंज होने वाला है. NH4Cl, हम क्या ले रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं. सॉल्ट को रिएक्ट जब कराया जाएगा एल्कलीज के साथ, एल्कली वी आर टेकिंग स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज क्या है अपना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एल्कली वी कैन से. तो व्हेन हम इसको रिएक्शन का कंडीशन क्या है, हीटिंग. दिस एरो इंडिकेट्स हीटिंग, कि हम पर्टिकुलर रिएक्शन किस कंडीशंस पे चल रही है, हीटिंग से चल रही है. इसको हीट करा जा रहा है. इसको मिक्स करेंगे, सॉल्ट में NaOH डालेंगे, सॉल्यूशन बनेगा, एंड वी आर डूइंग व्हाट, डूइंग हीटिंग ऑफ दैट सॉल्यूशन. और उसके बाद क्या बनने वाला है अपने पास, सबसे पहली चीज तो उन्होंने बता दी, हमारे पास अमोनिया निकलने वाला है गैस की फॉर्म में, NH3 गैस निकलेगी. फाइन, क्या बच गया NH3 के बाद, NH3 के बाद अपने पास क्या बच रहा है, यू कैन सी हियर अमोनियम सॉल्ट के बाद हमारे पास अमोनियम सॉल्ट जो है हमारे पास देगा एक सॉल्ट का प्रोडक्शन जो अपना कॉमन सॉल्ट है विद द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया और साथ में वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा और अमोनिया क्या है, गैस है. दैट्स व्हाई दिस एरो इज देयर टू शोइंग द प्रेजेंस ऑफ गैस. NaCl अपना एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा अलोंग विद वाटर. फाइन. तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. अमोनिया गैस को बनाने के लिए भी इस प्रोसेस को यूज करा जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्कलीस. एल्कलीस के साथ, बेसिस के साथ क्या करा जा रहा है, रिएक्शन कराई जा रही है, आयन एक्सचेंज हो रहा है अगेन, और हमारे पास क्या बन रहा है, एक सॉल्ट मिल रहा है, वाटर, और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन का दैट इज अमोनिया गैस. तो एल्कलीस आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया गैस फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट. Fine. So next we can see here is the important thing of this reaction is this is again the reaction जिसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि क्या हो रहा है, सिर्फ सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, इसको इसमें डिसॉल्व करेंगे एंड दिस विल बी गोइंग टू रिएक्ट. नो, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रह रहा है, टेम्परेचर कंडीशन इज हीटिंग. अगर हम हीट नहीं करेंगे तो रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड. तो आफ्टर हीटिंग दिस विल बी हैपनिंग हियर. So next important chemical reaction of bases is when alkalis precipitated out insoluble metal hydroxide. Alkalis क्या करेंगे, precipitate out करेंगे जो insoluble metal hydroxide रहेगा रिएक्शन में. For example, we can see here with the case of copper chloride. कॉपर क्या है अपने पास, एक मेटल है और साथ में क्या है, क्लोराइड. कॉपर का एक सॉल्ट है. When this salt is dissolved in NaOH, किसमें, बेस में डिसॉल्व करेंगे तो क्या काम करने वाला है अपने पास ये, we can see in the रिएक्शन क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा अगेन, तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेटेड होंगे. कैसे, वी कैन सी हियर CuCl2 इज आवर कॉपर क्लोराइड. व्हेन वी आर डिसॉल्विंग दिस इन बेस एल्कली, हम एल्कली में डिसॉल्व कर रहे हैं तो विल गेटिंग व्हाट, अब हमारे पास कॉपर क्या है, मेटल है, तो आयन एक्सचेंज होने वाला है. तो वी से दैट ये पॉजिटिव है अपना, 2 वैलेंसी, इसका -1, इसका +1 है, इसका है -1.
फाइन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये चीज होने वाली है, फाइन। तो यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट द थिंग कि ये चीज क्यों होती है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है एज पर इट्स वैलेंसी, वैलेंसी इज व्हाट, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कॉपर यहाँ पे 2 क्लोरीन के साथ लग रखा है, क्यों? बिकॉज उसका टेंडेंसी है 2 बॉन्ड बनाने का, 2 जाके शेयरिंग कर, 2 बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन लेने का, ठीक है, डोनेट करने का, कैटाइन है, ठीक है। तो कॉपर की क्या टेंडेंसी है, 2 की, इसकी टेंडेंसी कितनी है, कंबाइन होने की 2 के साथ, बट क्लोरीन की है 1 के साथ। तो इस केस में जब किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, एटम का टेंडेंसी रहता है मोर देन दैट ऑफ विच इज इट इज गोइंग टू बी मेक बॉन्ड विद, तो क्या होता है, जिसके साथ ये बॉन्ड बनाने वाला है ये क्या करेगा, उसी के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर क्या कर रहा है, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 क्लोरीन 1 बनाएगा, 2nd क्लोरीन अनदर 1, दिस इज 2 into 1, तो 2 हो गया। तो इसी के बेस पे हमारे पास क्या बनते हैं, कंपाउंड फॉर्म होता है, फॉर्मूला फॉर्म होता है। तो जब यहाँ पे क्या होगा, आयन एक्सचेंज होने वाला है, तो हमारे पास हमने क्या पढ़ा, क्या करने वाला है ये एल्कली, दिस एल्कली इज गोइंग टू प्रेसिपिटेटेड आउट इन सॉल्युबल क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, सॉरी। तो जो अपना कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो ऐसे बनेगा, ये क्या रहेगा, प्रेसिपिटेटर होगा ना, तो ये एरो शो करेगा कि ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट्स मिल गए हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड के, सॉल्ट अपने पास फॉर्म हो गया NaCl, which is aqueous solution में है। You can see in the reaction also, ऐसे ही हो रखा है आपके रिएक्शन में, फाइन। तो अभी ये कॉपर हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड से ज्वाइन कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो कोई हाइड्रोक्साइड को 2 नहीं लग रखा, बिकॉज सोडियम का कैपेसिटी भी 1 है, हाइड्रोक्साइड का भी 1 है, सिंपली ज्वाइन होके कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इजीली। बट अगर कॉपर को इससे ज्वाइन करना है तो कॉपर रिक्वायर्ड 2 OH ions to be satisfied for stability, फाइन। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होती है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होएगा। हुआ कैसे, रिएक्शन क्या कर रहे थे हम, एल्कलीज जो हैं, दीज एल्कलीज आर डूइंग व्हाट, दे आर डूइंग टू सेपरेट आउट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्ट फॉर्म। सॉल्ट में से क्या करेंगे, ये प्रेसिपिटेट आउट कर देंगे, किसको, जो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड रहेगा। अनदर एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है जिंक क्लोराइड का, सेम चीज हो रहा है जिंक क्लोराइड में भी। जिंक इज अ मेटल, Cl2 क्लोराइड, जिंक का सॉल्ट है अपने पास, उसमें हमने क्या ऐड करा है, NaOH, कोई एल्कली ऐड करा, ये भी हमें क्या देने वाला है, जो हमारे हाइड्रोक्साइड है उनको प्रेसिपिटेट आउट करके देने वाला है। तो प्रेसिपिटेट आउट करके देगा तो क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। अगेन OH टू जिंक का भी वैलेंसी 2 रहता है ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्लोरीन 2 लग रखा है, NaOH 1 and -1, ठीक है। दिस इज एज पर एटॉमिक नंबर, हम वैलेंसीज निकालते हैं, फाइन। तो जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl बन रहा है अपने पास, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है, फाइन, एंड दिस इज एक्वस। तो ये रिएक्शन जो अपने पास आ रही है किस वजह से आ रही है, एल्कलीज क्या कर देती हैं, जो भी हमारे पास मेटल सॉल्ट है उसमें अगर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स हैं उनको क्या करेगा, प्रेसिपिटेटेड आउट करके हमें दे देगा। यू कैन सी दिस रिएक्शन अगेन इन द इमेज। So another in the case of precipitation reactions by the alkalis, we can see another important thing जो थोड़ा exceptional है इस केस से, जो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेड, जिंक एंड एल्यूमिनियम रहेंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे इन एक्सेस ऑफ कॉस्टिक अल्कलीज, ठीक है। कॉस्टिक सोडा जो हमारा रहेगा, कॉस्टिक एल्कली, उसमें क्या करेंगे, वो हमें प्रेसिपिटेटेड नहीं देंगे फॉर्म, वो क्या करेंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर इज द बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, फाइन। तो उसकी वजह से क्या करेंगे, ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड लेंगे हम, जो जिंक हाइड्रोक्साइड है जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने पास क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर की फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। उस केस में क्या होगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन नहीं होने वाली है बिकॉज ऑफ देयर एम्फोटेरिक नेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलीज इज देयर एल्कलीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। एयर से क्या कर सकते हैं एल्कलीज, एब्जॉर्बिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ इज इट पॉसिबल, लेट्स सी। एल्कलीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट्स। क्या करने वाली है, एल्कलीज में मेटल्स है और उसमें से मेटल के साथ क्या है, OH हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, तो वो क्या बन गई, अपनी एल्कली बन गई। बट इनका क्या प्रॉपर्टी अभी हम देख रहे हैं कि दे कैन एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एयर, और उसको एयर में से CO2 एब्जॉर्ब करके दे कैन बी फॉर्मिंग मेटल कार्बोनेट्स। लेट्स सी हाउ।
For example, sodium hydroxide is there, which is an alkali, and it is absorbing CO2 from air, and but they can be formed. Obviously क्या होएगा, NaOH के साथ जब भी CO2 react करेगा तो कार्बोनेट ही फॉर्म होने वाले हैं अपने पास, Na2CO3 along with the water. So this is the important property for the absorption of CO2 and formation of carbonates by the alkalis. Next is again with the potassium, it can also happen. पोटेशियम के साथ भी CO2 अगर क्या कर रहा है, एयर से वो एब्जॉर्ब कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, then it is forming potassium carbonate. We can see in the reaction potassium carbonate and H2O. So this is the process of absorption of CO2 by the alkali from the air to form the carbonates. Next we can see another property is reaction of alkali with metals. तो जब alkalis जो है metal से react करेंगी तो some bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide react with active metals. तो ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग जो बेसिस हैं, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दिल रिएक्टिंग विद एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम और लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन गैस. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्या करते हैं जब भी मेटल से रिएक्ट करेंगे एल्कलीज, दे विल गिविंग द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस. You can see here zinc metal is undergoing the reaction with NaOH and it will be forming a product, that is name of the product is again sodium zincate and along with the production of hydrogen. तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है जब भी मेटल से एल्कलीज रिएक्ट करेंगे, H2 गैस प्रोड्यूस होगा अपना. Next example is with aluminium. Aluminium and hydroxide, sodium hydroxide again alkali and plus water we need to add. इसको dissolution करने के लिए extra water we are adding and we are getting in the reaction sodium aluminate, जो एक हमारा क्या बन रहा है, solid बन रहा है, salt form में आ रहा है, and along with the liberation of hydrogen gas. So these are the important properties and we need to remember alkalis क्या करती हैं जब metal से react कर रही हैं, they will giving the production of main चीज क्या निकल रही है, gas उसमें produce हो रहा है, hydrogen with the salt production.